So its first use was forecasting demand and supply. So WPI is often used to forecast demand and supply in the economy. Increase in this WPI shows excess demand, and decrease in wholesale price shows excess in demand. The deficient in demand in that. Second, it is used, it's very important to use is we can estimate the real value of the money and monetary value of the income. सर ये डिफिशिएंट डिमांड जो डिक्रीज होता है इसका मतलब क्या होता है? डिफिशिएंट डिमांड होता है मार्केट में डिमांड कम होना. मार्केट में डिमांड कम होना, लोग कम परचेज करते हैं. जब भी प्राइसेस इंक्रीज होते हैं तो लोग कम परचेज करते हैं बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमांड. अगर फॉर एग्जांपल बनानास का प्राइस 50 रुपया हम रखेंगे मार्केट में पर डजन. If 500 people purchase bananas from the market, if suddenly price of bananas goes to 100 rupees, so 500 people will not now demand bananas. Less people will demand bananas because of increase it is prices, because of law of demand. जब भी कोई चीज महंगा हो जाता है तो लोग उसको कम खरीदते हैं. That is deficient demand, that is decrease in demand. ओके सर, समझ आ गया. तो फिर एस्टिमेशन ऑफ मनी वैल्यू, हम मनी वैल्यू, मनी का जो वैल्यू है वो हम एस्टिमेट कर सकते हैं in terms of monetary value, in terms of real value. What is real value of money and what is monetary value? Yes, monetary value is the face value of the money. 500 नोट का कितना खरीद सकता है? 500 नोट मीन्स it is monetary value. तो ये कितना खरीद सकता है? That is real value. That is real value. Yes. So we can estimate the real value and monetary value of the income, national income or money with the help of this WPI, wholesale price index. So money value is estimated at current prices and real value is estimated at, measured at base year prices. So real value of money is equal to monetary value of money into price index of base year divided by price index in current year. So this is formula for calculating the real value of money. The third use of this WPI is, its third use is indicator of rate of inflation. Indicator of rate of inflation. Indicator of rate of inflation. What is inflation? Inflation means, yes, inflation means rise in prices. Rise in prices and fall in value of money. Fall in value of money. Money. Yes. And rate of inflation means the rate at which price level increases. The rate at which price level increases. ठीक है? वो नजर आता है? Yes sir, आ रहा है. So the wholesale price index is also used. Is also used to calculate rate of inflation. Rate of inflation in the economy. Rate of inflation को measure करने के लिए we use wholesale price index. It's the rate at which price tend to increase over time. So rate of inflation is the rate at which prices tend to increase. Prices tend to increase over time. That is from one time to another time. एक टाइम से दूसरे टाइम तक प्राइसेस कितने बढ़ गई? That is rate of inflation. So प्राइस बढ़ने का जो रुझान है
we can assess or we can calculate or we can estimate it with the help of the wholesale price index. So these are the three important uses of wholesale price index. तो जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स था वो हम इस्तेमाल करते थे टू नो द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स. तो होलसेल प्राइस इंडेक्स जरूरत आता है डिमांड और सप्लाई फॉरकास्ट में, एस्टिमेशन ऑफ मनी वैल्यू एंड रियल वैल्यू. इसी तरह इट इज इंडिकेटर और टॉरेज बेरर टू नो द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, व्हाट इज द प्राइस राइजिंग ट्रेंड. इसी के साथ एक क्वेश्चन आप और एक लिख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज रेट ऑफ इन्फ्लेशन. ये हमने अभी लिखा भी है, व्हाट इज रेट ऑफ इन्फ्लेशन, व्हाट इज रेट ऑफ इन्फ्लेशन. ये क्वेश्चन भी लिख लीजिए. ये लिखेंगे हम, इन्फ्लेशन मीन्स rise in prices or fall in the value of money. इसका दूसरा साइड है इस कॉइन का deflation. One is inflation and another is deflation. Deflation, yes sir, decrease. Deflation means fall in prices. वो इसका opposite है. अगर deflation हम लिखेंगे and deflation means, ये भी हम इसी के साथ लिखेंगे, deflation means fall in prices or rise in value of money. Value of money. हाँ, rise in value of money. Inflation में price rise होता है, value of money fall होता है. Deflation में prices fall होते हैं और value of money rise होता है. Yes. Okay? So as we know, this wholesale price index, WPI, it is prepared for every week. So it is calculated on weekly basis. जो rate of inflation है, ये हम weekly basis पे, ये जो WPI है, ये हम weekly basis पे calculate करते हैं. That is, we can say rate of inflation is also prepared for, that is, the rate of inflation is also prepared for weekly basis, prepared for every week or weekly basis for every week. अगर तू रेडियो ऐसे बोझा, अगर आप रेडियो सुन रहे होंगे तो उस पे हर हफ्ते के बाद, आफ्टर एवरी वीक, द गवर्नमेंट अनाउंसेस व्हाट इज द रेट ऑफ इन्फ्लेशन. दैट इज एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ होलसेल प्राइस इंडेक्स. रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्या है आज मुल्क में, तो महीने में 4 बार ये कैलकुलेट की जाती है. ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसके लिए है, फॉर कैलकुलेटिंग rate of inflation, हम प्रोसीजर क्या इस्तेमाल करते हैं फॉर कैलकुलेटिंग रेट ऑफ इन्फ्लेशन. इफ फॉर वीक वन, पहले वीक के लिए, महीने में कितने वीक्स होते हैं, 4 होते हैं ना, फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक एंड फोर्थ वीक. इफ फॉर फर्स्ट वीक the wholesale price index WPI is A1. अगर हम पहले हफ्ते का जो wholesale price index है, that is represented by A1, उसको हम A1 लिखते हैं. And wholesale price index for week 2 is A2. ये समझ आता है? फॉर एग्जाम्पल, होलसेल प्राइस इंडेक्स पहले हफ्ते के लिए हम रिप्रेजेंट करते हैं, हम दिखाएंगे बाय A1, एंड होलसेल प्राइस इंडेक्स फॉर वीक 2 इज A2. देन रेट ऑफ इन्फ्लेशन, then rate of inflation
between week 1 and week 2 would be estimated as, किस तरह ये estimate की जाती है? The rate of inflation is equal to A2 minus A1 divided by A1 into 100. So this is formula for calculating rate of inflation for a week. एक वीक के लिए रेट ऑफ इन्फ्लेशन हम कैलकुलेट करते हैं. रेट ऑफ इन्फ्लेशन फॉर वीक 1 is equal to A2 minus A1 divided by A1 into 100. This is wholesale A1. What is A1? A1 is wholesale price index for week 2, and A1 is wholesale price index for week 1 divided by wholesale price index of week 1 in 100. Into 100. Yes. So A1 is wholesale price index for first week, and this is wholesale price index for second week. Second week. A1 is wholesale price index for first week, and A2 is wholesale price index for second week. इसको divide, इसकी difference को divide करेंगे wholesale price index of first week into 100. We can get rate of inflation. We can get rate of inflation. Inflation. So, अगर हम एक न्यूमेरिकल एग्जांपल दे देंगे कैसे हम रेट ऑफ इन्फ्लेशन एस्टिमेट करेंगे. इलस्ट्रेशन लिख लीजिए. इलस्ट्रेशन या एग्जांपल. Illustration. If wholesale price index for week 1 is equal to 200, and for week 2 it is equal to 250. अगर होलसेल प्राइस इंडेक्स पहले हफ्ते के लिए 200 है और दूसरे हफ्ते के लिए 250 है, then rate of inflation is equal to क्या है? फॉर्मूला क्या है हमारे पास? रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्या है? A2 माइनस A1 डिवाइड बाय A1 into 100. हाँ, लगाइए ये वैल्यूज इसमें. A2 के लिए क्या है? 250 माइनस A1 के लिए 200 डिवाइड बाय 200. हाँ, A1 के लिए 200 into 100. 25 निकलता है इसका आंसर. यस क्या? यस सर, आप 50 डिवाइड बाय 200 कीजिए. वो तो मैं तो थोड़ा लंबा करता हूं ना. Therefore, rate of inflation equal to 250 minus 200 is 50 divided by 200 into 100. अब क्या आ गया निकल के? Therefore, rate of inflation is equal to 50 divided by 200 कितना है? 0.25. 0.25 into 100. वो कितना हो गया? Is equal to 25. Therefore, rate of inflation क्या है? 25 sir. 25%. It is 25%. So rate of inflation is 25%. So annual rate of inflation is estimated by considering average wholesale price index for all weeks of the year. अगर हमें साल के लिए निकालना है तो वो हम एवरेज निकालते हैं सारे वीक्स का. Annual rate of inflation is estimated by considering average of wholesale price index for all weeks of the year. So एक साल के लिए
ज्यादातर हम रेट ऑफ इन्फ्लेशन एक हफ्ते के लिए निकालते हैं. We calculate rate of inflation for 1 week. For 1 week. Okay. This is how to estimate the rate of inflation. अगर मैं आपको क्वेश्चन दे दूंगा, क्वेश्चन लिख लीजिए. If wholesale price index for week 1 is equal to, for example, 150, and wholesale price index for week 2 is equal to, for example, it is 225. Find out rate of inflation. Rate of inflation दे दीजिए. Find out rate of inflation. ये आपके लिए क्वेश्चन है. अगर दूसरा भी आप ले लोगे, if wholesale price index for, सर एक साल में दिखाइए. एक साल में. यस सर. अच्छा, ये क्वेश्चन लिख लीजिए, फिर मैं ये भी दिखाऊंगा ना आपको ये वो कैसे निकालना है. Week 1 is equal to, for example, it is 175, and wholesale price index for week 2 is equal to 275. Find out rate of inflation. अब एनुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन आप बताते हैं, है ना? यस सर. So annual rate of inflation is estimated by considering average of wholesale price index for all weeks of the year. उसमें हम कंसिडर करते हैं average ऑल wholesale price index for all weeks of the year. ये लिख लिया. So यस सर. the annual rate of inflation is estimated by considering CONSIDERING, by considering average of the wholesale price index for all weeks of the year. ये क्या है? एक हफ्ते, एक साल में कितने होते हैं ये वीक्स? शाबाश. टोटल वीक्स इन ए मंथ कितने? 48 सर. 48 टोटल वीक्स इन ए मंथ होते हैं 4. अच्छा, मैं सर साल की बात करती हाँ, टोटल वीक्स इन ए ईयर इज इक्वल टू 48. 4 into 12, that is 48 weeks, है ना? तो जी सर. इसका मतलब है हर वीक के लिए हमें होलसेल प्राइस इंडेक्स अवेलेबल होता है. फॉर वीक 1, फॉर वीक 2, फॉर वीक 3, इसी तरह होता है ना. ये हम निकालते हैं फॉर 48 वीक्स, फॉर 48 वीक्स. ये हम टोटल करते हैं, ये हम यहां टोटल करते हैं. इसका टोटल क्या आ गया? ये समझ आ गया मैं क्या करता हूं? जी सर, समझ आ रहे हैं.
फॉर एग्जांपल वीक 1 के लिए है 150, वीक 2 के लिए फॉर एग्जांपल 200, वीक 3 के लिए 175, इसी तरह वीक 4, वीक 5, इसी तरह चलते चलते 48th वीक के लिए भी कुछ होगा, फॉर एग्जांपल 250। इनको हम टोटल करते हैं, इसको हम टोटल करते हैं, फिर डिवाइड करते हैं 48 से, वो होता है रेट ऑफ इन्फ्लेशन फॉर year. Yes, annual rate of inflation is estimated by considering average of wholesale price index for all weeks of the year. Okay, तो या तो हम हर वीक के लिए कैलकुलेट करते हैं रेट ऑफ इन्फ्लेशन, फिर इसको हम 48 से, फॉर एग्जांपल अभी हमें 25% आ गया, फिर वीक 2 के लिए हम निकालें, फिर वीक 3 के लिए, फिर वीक 4 के लिए, इसी तरह कितनी ये परसेंटेज आ गई उसको टोटल करते हैं, डिवाइड करते हैं 48, we can get rate of inflation. So this is how to calculate the rate of inflation for week and rate of inflation for the whole year. तो इस तरह हमारा ये होलसेल प्राइस इंडेक्स खत्म हो गया। तो अब हमारा नेक्स्ट है इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। टुमारो इंशाल्लाह, आज के लिए काफी है। इंडेक्स फॉर, जिस तरह हमने इंडेक्स फॉर प्राइसेस पढ़ा है, आज तक हम पढ़ रहे थे प्राइस इंडेक्स नंबर, अब हम इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पढ़ेंगे। अभी हम प्राइस इंडेक्स पढ़ते थे, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इसमें हम देखेंगे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में कितनी चेंज आ गई फ्रॉम वन टाइम टू अनदर टाइम। अगर हमारी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पैदावार, इंडस्ट्री में कितनी पैदावार निकलती है, अगर 2010 में फॉर एग्जांपल 100 मिलियन टन था, अब 2015 में फॉर एग्जांपल इट हैज इंक्रीज्ड टू 150 मिलियन टन। तो कितनी चेंज आ गई? Okay, sir. What is the relative Sir. change in the production of industrial production from base year to current year? सर हाँ? अगर हमें क्वेश्चन आएगा ईयर में निकालने के लिए, वहां पर 1 to 48 वीक्स का मत दिया होगा, वहां पर कुछ एक ही दिया होगा ना, कोई एक ही वैल्यू। फिर वो खुद बताएगा, फिर क्वेश्चन खुद वहां बताता है कि किस तरह मुझे निकालना है, क्वेश्चन में ही आंसर होता है ना। हाँ, तो ये सीखने के लिए, अगर आप गवर्नमेंट में अपॉइंट हो जाओगे, वहां तो आपके लिए डाटा अवेलेबल है फॉर ऑल वीक्स। तो जनरली जो है, जनरल ट्रेंड जो है, वो हम वीकली बेसिस पे रेट ऑफ इन्फ्लेशन कैलकुलेट करते हैं। ईयरली तो जब ईयर खत्म हो जाता है तो हमारे पास डेटा होते हैं, हम निकालते हैं, उसमें कोई मुश्किल की बात नहीं है। आज तो कंप्यूटर्स हैं, आज तो कैलकुलेटर्स हैं, आज तो मेथड हैं, टेक्नोलॉजी है। जब थी भी नहीं तो भी किताबों पे लिखा होता है डेटा, तो डेटा अवेलेबल है, वी कैन कैलकुलेट, तो मसला नहीं है। ओके, क्वेश्चन ऐसा नहीं आता है कभी। क्वेश्चन अगर आएगा तो ये रेट ऑफ इन्फ्लेशन फ्रॉम वन वीक टू अनदर वीक, फॉर वीक 1 ऑफ विथ रेफरेंस टू वीक 2, ठीक है। इस तरह हमने यहाँ कैलकुलेट किया रेट ऑफ इन्फ्लेशन फॉर वीक 1। जी सर, ठीक है, ओके। और कोई क्वेश्चन? कंफ्यूजन मारो तो कुन जाए ना। थैंक यू वेरी मच। कल मैं आपको पढ़ाऊंगा इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, और तो हमने यूजेस पढ़े और रेट ऑफ इन्फ्लेशन पढ़ी हैं। जी सर, थैंक यू। टाइम हो गया अब।